डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बट इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग जनरली जो देखते हैं ये क्या रिएक्शन है, तो ये सर अल्केन बनाने का रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड से। इट इज़ अ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम लोग सारे इसके डिटेल मैकेनिज्म और बहुत सारे डिटेल एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो उर्ज रिएक्शन बेसिकली क्या है सर? इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन of alkane from alkyl halide, from alkyl halide। सो अगर जनरल रिएक्शन इसका हम लोग लिखेंगे तो वी कैन राइट कि सर दिस इज अल्काइल हैलाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड in presence of sodium dry ether, you get the higher members of alkane, RR. This is the alkane of higher members, higher alkane. Okay, this is alkyl halide, alkyl halide, and this is higher members of alkane. So first thing is that sir, two molecules of alkyl halide when taken in presence of with sodium in presence of dry ether, we get higher members of alkane. That means अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड लेते हैं सर, तो हमें ये अल्केन जो है, अल्काइल ग्रुप जो है वो खुद को रिपीट करता है। सो मिथाइल क्लोराइड अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। इथाइल क्लोराइड लेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा। अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं तो हमें हेक्सेन मिलता है। मीन्स हम लोग ये देख रहे हैं कि हमेशा हमें 2 के मल्टीपल में, मतलब इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन अल्केन हमें मिलेगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज सुइटेबल फॉर, इट इज suitable for preparation of alkane containing, preparation of alkane containing even number of carbon, even number of carbon atom, correct, even number of carbon atom। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग अल्केन को हम लोग उर्ज रिएक्शन से जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग, अगर हमें कंपल्सन है कि अगर और नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन ही बनाना है, इन दैट केस वी मे टेक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो उसको हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे, एग्जांपल वाइज देखेंगे। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो देर आर टू मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर दिस रिएक्शन। There are two mechanisms proposed for this reaction. First one is free radical mechanism. Free radical mechanism. Okay. Free radical mechanism. कैसे होता है ये? So we are taking one alkyl halide. You know sodium is a metal, so it has a tendency to form sodium cation by losing one electron. When we see the free radical mechanism, this covalent bond is breaked homolytically. So one electron shifted to a halogen atom and one electron shifted to alkyl group. Okay. Then you get one alkyl free radical as an intermediate. This one electron which is released by sodium atom is gained by halogen, and you get NaX, Na plus and X minus. This is our intermediate. So this intermediate interact with other free radical intermediate and you get higher members of alkane, correct. Another mechanism suggested is carbanion mechanism. Carbanion
anion mechanism. Okay, so carbon anion mechanism is something like this कि sir alkyl halide, this bond is breaked heterolytically. We are taking 2 sodium atom at a time. It gives 2 sodium cation and releases 2 electron. Okay, so 1 sodium cation is goes with halide. It breaks like this. This 2 electron is accepted by alkyl group and it forms carbon ion, and 1 sodium goes along with this. So this is alkyl sodium intermediate. Alkyl sodium, you get alkyl sodium as an intermediate. Okay, this alkyl, this carbon ion attack on the another molecules of alkyl halide and it shows SN2 reaction. SN2 reaction, we get higher members of alkane and NaX is a byproduct. So these two mechanism, free radical and carbon ion mechanism, is proposed in case of Ur's reaction. ओके, नो प्रॉब्लम. सो सर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखें. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल सिंपल सा अगर हम लोग ले लें, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड. रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. व्हाट यू गेट? यू गेट इथेन. CH3 एंड CH3 हायर मेंबर्स मिलता है हमें, इथेन मिलेगा सर. If you are taking ethyl chloride, CH3, CH2, Cl, okay, in presence of sodium and dry ether. So guys, focus here कि सर यहाँ पे एक तो हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएंगे ब्यूटेन, CH3, CH2, रिपीट करेगा सर ये CH2, CH3 हो जाएगा. दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन. ओके, but sir along this normal butane, two another product is formed. One is ethane CH3 and other is CH2 double bond CH2, and you get these two product in 1:1 ratio. These two product in 1:1 ratio. Okay, of course in this case it is a minor product. This product is considered as disproportionation product. Disproportionation product. This product is considered as disproportionation product. This is normal butane. 1:1 के रेशियो में आपको अल्केन भी मिलता है और अल्केन भी मिलता है. सो गाइज इन उर्स रिएक्शन हम लोग देखते थे कि सिंपली हायर अल्केन मिलता है, लेकिन नहीं सर, along with higher alkane we also get disproportionation product and which is major in case of tertiary alkyl halide. गाइज यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट माइनर है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इस प्रोडक्ट को अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, और मेजर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा. बट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन दिस केस, तो टोटल 3 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ इथाइल क्लोराइड उर्स रिएक्शन. क्लियर है बात? ओके है. चलिए देखिए सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल हम टर्शियरी के केस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का केस ले लेते हैं, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मेजर हो जाएगा. CH3 CH3 क्लोरीन. अगर हम लोग ये 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और यहाँ पे हम लोग सेम रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर लेंगे, तो इन दैट केस अगर आप इसका प्रोडक्ट सिंपली डाइमर के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा सर, क्योंकि इन दिस केस दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन माइनर. ये हमारा इस केस में माइनर प्रोडक्ट होगा सर. सो दिस इज नॉट द आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा. सो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या होगा सर? 1 इज CH3 and H, simply alkane, and other product is CH3C CH3 double bond CH2.
these two product, these two disproportionation product, disproportionation product is measured in this case. So Wood's reaction of tertiary alkyl halide gives alkane and alkene in 1:1 ratio. Got it? चलिए इसको हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे इसका. आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसको कर सकते हैं, कार्बेनाइन मैकेनिज्म से कर सकते हैं. हम आपको यहाँ पे कार्बेनाइन मैकेनिज्म दिखाते हैं कि सर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड ऐसा है जो कि सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कार्बेनाइन देगा, और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स पे CH2, यहाँ पे हम एक फ्री H दिखाते हैं, ये हो गया CH3 और यहाँ पे आप क्लोरीन ले रहे हैं. सो क्या करेगा सर? इट इज नॉट बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ बेस्ट बेस, ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो इट एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ से इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा. ओके, H प्लस को सर ये एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा सर, और Cl माइनस बाहर चला जाएगा. सो यू गेट CH3 और यहाँ पे H अल्केन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 and CH3. Got it? So these products are the major product in case of tertiary alkyl halide. This is the crux of Wood's reaction. So इसको ठीक से देखेंगे guys. यहाँ पे ये प्रॉब्लम है मैकेनिज्म में, Wood's reactions का ये मैकेनिज्म में यहाँ पे प्रॉब्लम है सर. ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग Wood's reaction का. This is I think third example. So example number 4, अगर हम लोग सर आइसोप्रोपाइल ले लें, CH3 CHCl, here it is CH3, same sodium dry ether, what we get? We get dimer of this like CH3 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 and CH3. Okay, it is also represented like this. Okay, this is also sometimes written like IPrCl. this is isopropyl chloride. डन है सर. आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का केस हम लोग देख चुके हैं. सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि इफ वी आर टेकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लाइक मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl, two different types of alkyl halide, same reagent, you get three different product. You get ethane when two molecules of methyl chloride interact with each other. You also get butane, CH3 CH2 and CH3, plus you also get propane, CH3 CH2 and CH3. So yes, you get the odd number containing carbon containing alkane, but in this case along with this compound, along with this product, we also get ethane and butane. So it is not best method to prepare propane. प्रोपेन बनाने का ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है सर. गॉट इट सर? अगर हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, CH2Cl CH2 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 CH2Cl, ओके, CH2Cl, सेम रिएजेंट. सो हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख सकते हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा. होता क्या है, यहाँ पे ये एक दूसरे पे अटैक करके साइक्लाइजेशन कर लेता है. सो 1 2 3 4 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बन जाएगा सर, एंड यू गेट साइक्लोपेंटेन. ओके, सेवेंथ, सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं. एंड वुड्स रिएक्शन का ये बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन है. इस स्टेप से अगर हम लोग डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, यहाँ पे Br है सर और इस पोजीशन पे Cl है, एंड वी आर टेकिंग सेम रिएजेंट सोडियम एंड ड्राई ईथर, you get bicyclo compound, right? You get this is the bicyclo compound. Next example, something like this. Here we see this is Br and Br, sodium and dry ether, same reagent,
what we get? We get this product this time. This is Aspiro product, so we get Aspiro product. Ninth example we may take like this. This is Br and here it is Br. Sodium diether. A bicyclo product is this. This is the bicyclo product. Okay. 10 and last examples like this. Here this is Cl, this is Cl, sodium and diether. We get the compound like this. This is the bicyclo compound. Okay guys, so I think बहुत ही लार्ज स्केल पे हमने एग्जांपल किया है। और जो उर्ज रिएक्शन में जो मेन बात थी कि सर उर्ज रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है, थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं उर्ज रिएक्शंस में फॉर्मेशन के लिए। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलो प्रोसीड करते हैं ये, आइदर कार्बन आयन मैकेनिज्म और आइदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख सकते हैं हम लोग। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट इज मेजर, अल्केन एंड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। और जो डायमर बनाते हैं हम लोग उर्ज रिएक्शन में जो जनरल प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज माइनर इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसको याद रखेंगे। ओके।